خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خدا بھلا ہے، اور یہ بڑا خاص موقع ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسیح یسوع کے ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ سب آج کے دن یہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے یسوع المسیح جو ہے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر مصلوب ہوئے، کیسے اس نے ہمارے لیے جان دی، اور جان کرنے کی حالت میں بھی مسیح یسوع کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جس سے ہمیں یہ تاثر ملے کہ یسوع مسیح نفرت کی بات کرتے تھے، حسد کی بات کرتے تھے، بلکہ اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے اور آنے والے دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ محبت بدی پر غالب آتی ہے۔ آج اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یسوع مسیح کے لمحہ مبارک سے جو پہلا کلمہ ہے جس کی ادائیگی ہوئی، وہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 23 باب کی 34ویں آیت ہے۔ 23ویں باب کی 34ویں آیت ہے۔ یہ کلمہ جو مسیح خداوند کے منہ سے بات نکلی وہ یہ تھی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی محبت والی، رحم دلی کی اتنی بڑی مثال ہے جس کو بیان کرنے کے لیے نشا کومل جاوید آپ کے سامنے آئیں گی اور یہ جو کلمہ ہے اس کو پیش کریں گی۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع مسیح کا صلیب پر پہلا کلمہ، اور یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب انسان دکھ تکلیف یا پھر غصے میں ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس شخص کی جو بھی اصلیت ہوتی ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اظہار کرنے سے ہی باطن کا علم ہوتا ہے اور زبان اندر کا حال بیان کر دیتی ہے۔ لیکن جب کسی بے گناہ کی جان لی جا رہی ہو تو جان دینے والا اس گھڑی میں کیا سوچتا اور کیا کرتا ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ مسیح یسوع اور اس کے ساتھ مصلوب پہلا ڈاکو جو چیختا اور چلاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، حالانکہ وہ شخص قصوروار بھی تھا، لیکن جب مسیح یسوع کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ ایسے ہی تھے کہ جیسے اپنے دشمنوں پر بھی پھولوں کی بارش برسائی جا رہی ہو اور بدلے میں دشمن نوکیلے پتھر مار رہے ہوں۔ دشمن بھی نہیں بلکہ خود اپنی ہی محبوبہ خنجر لیے اور انجانے میں اپنے ہی محبوب کے خون کی پیاسی ہو۔ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس بے گناہ کو گناہ گار موت کی سزا دیں اور وہ بے گناہ ان سب کے لیے اپنے طاقتور باپ سے جو سب کچھ دیکھ رہا ہو اس سے ان کے لیے معافی کی درخواست کرے، بلکہ ان کا وکیل بن کر مضبوط دلیل دے کے، اے باپ لاکھ برے سہی مگر اتنے بھی نہیں کہ مجھے پہچان جاتے تو پھر بھی ایسا کرتے۔ دراصل یہ مجھے پہچان نہیں پائے اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ میرے قصوروار ہیں۔ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ اور یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے اپنے قصورواروں کو معاف کر دیا تو جج بھی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ممکن ہو، اس لیے وہ اپنے یہ کیس خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جج وکیل سے ثبوت اور دلائل طلب کرتا ہے، اور آپ نے ایک سچا اور دیانتدار وکیل ہوتے ہوئے صرف ایک ہی دلیل دی، اور وہ اس قدر ٹھوس کہ یہ مجھے پہچان نہیں پائے کہ میں کون ہوں، اس لیے ان کو معاف کر دے۔ بہت سارے مسیحی بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ غیرت قوم کو کیا پتا، وہ مسیح اور مسیحیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں،
سارا علم تو ہمارے پاس ہے اور ہم سب کچھ سب جانتے ہیں، اور جاننے ہوتے اس علم پر عمل نہیں کرتے بلکہ محض فخر کرتے ہیں، تو ان کی معافی نہیں ہو سکتی اور ان کی عدالت ہوگی اور وہ سزا پائیں گے، کیونکہ صاف لکھا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ مطلب سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ بھلائی کیا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گناہ یہ نہیں تھا کہ مسیح خداوند کو مصلوب کر دیا گیا، بلکہ یہ کہ اس کے کفارے اور بہائے گئے پاک خون اور اس کی دی گئی قربانی اور قیمت کا انکار کرنا، اسے رد کرنا، اور یہ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی جان کے ساتھ بھلائی نہ کرنے جیسا بھیانک عمل گناہ ہے، اور در حقیقت یہی گناہ ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کسی دوسرے کو کندھا لگ جائے تو سب سے پہلے جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ یہ کہ اندھے ہو کیا؟ مطلب یہ کہ اگر اندھے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر موٹی موٹی آنکھیں موجود ہیں تو پھر دیکھ کر چلو ورنہ سزا مل سکتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دیگر موقعوں پر خود ہی لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن خاص کر یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کو باپ نے بھیجا تھا اور یہ بھیانک اور دردناک سلوک بھیجنے والے کے ساتھ ہی کیا جا رہا تھا، جس کا پیارا بیٹا باپ سے بدلہ لینے کی التجا ہرگز نہیں کرتا بلکہ معافی کی درخواست کرتا ہے اور سب کی نگاہیں آسمان کی طرف لگاتا ہے جو اس کا مقام تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے اس جہان کے گناہوں کا بوجھ خود پر اٹھا رکھا تھا اور باپ جج ہوتے ہوئے عدالت کر رہا تھا، اور ایک مجرم کی حیثیت سے آپ نے خود انہیں بلکہ جج سے کہا اور اسے خدا نہیں بلکہ باپ کہہ کر پکارا کہ ابا آپ یہ جرم معاف کر دیں۔ دراصل یہ معافی محدود اور صرف انہی لوگوں کے لیے تھی جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مصلوب اور قتل کرنے کے جرم میں شریک تھے، جن میں پلاطس سے لے کر سردار کاہن تک سب شامل تھے۔ عام طور پر اس پہلے کلمہ کو عام معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی بات کر رہے تھے کہ ان کو معاف کر، کیونکہ گناہوں کی معافی اور نجات حاصل کرنے کے لیے خود اقرار اور اظہار کرنا ضروری ہے، جس کی مثال وہ دوسرا مصلوب ڈاکو ہے۔ لیکن جو کلام اور نصیحت سن کر بھی خاموش رہے اس کے لیے فردوس میں جگہ بھی نہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات بھی کہتی چلوں کہ ایک دور باپ کا تھا اور ایک بیٹے کا جس میں وہ کام کرتے تھے۔ بے شک کسی نہ کسی طرح آج بھی وہ کام کرتے ہیں، لیکن آج دور روح کا ہے۔ باپ اور بیٹے کے خلاف گناہ اور گستاخی کرنے کی معافی تو تھی اور ہے جو پتال میں بھی ملی، لیکن جو روح القدس کے خلاف جاتا ہے اور اس کی نہیں سنتا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اب چلتی سانسوں کے ساتھ سب کچھ ہے، کیونکہ نجات چمکتے سورج کی مانند دکھائی دیتی ہے، جو نہیں حاصل کرتا ہلاکت کا فرزند ہے۔ یاد رہے شفاعت اور سفارش دو الگ باتیں ہیں۔ سفارش نالائق اور نکموں کی جاتی ہے، مگر شفاعت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے اور بہت ساری خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے برے بھی نہیں کہ جان اور پہچان جاتے تب بھی ایسا ہی کرتے، اس لیے ان کو معاف کر دے۔ انسان دوسروں کے عیب اور کمزوریاں تلاش کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے، مگر آپ نے اس کرب کی حالت میں بھی کیل ٹھونکنے والوں سے لے کر اس سردار کاہن تک سب میں اچھائی تلاش کی کہ یہ انجان ہیں، نادان ہیں۔ اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ اپنی حالت سنوار سکتے ہیں اور توبہ تک نوبت جا سکتی ہے اور ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، اور ایسا اسی موقع پر ہوتا بھی ہے کہ سننے والوں نے ان کلمات کو سن کر اقرار و اظہار کیا کہ بے شک یہ شخص راست بار اور خدا کا بیٹا ہے۔ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، انتہائی دکھ کی حالت میں بھی دوسروں کی فکر کی۔ اپنی خدمت کے آغاز میں جب آپ کو خود بھوک لگی تو اپنے لیے روٹیاں نہیں، لیکن جب
सवाल दूसरों की भूख का उभरा तो रोटियों के अनबार लगा दिए, और आज सलीब पर भी सबसे पहले दूसरों की फिक्र करते दिखाई दिए और अपने कसूरवारों को माफ़ किया, क्योंकि हम अपने कसूरवार को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के या दूसरों के कसूरवार माफ़ करना अलग बात है। दोनों डाकू हुकूमत वक्त के मुजरिम थे और अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। आपने उनको सलीब से उतारा नहीं, बल्कि उनमें से एक की रूह को अपने साथ ले गए, जिस पर किसी हुकूमत और इंसान का इख्तियार नहीं है। आपका पहला कलमा आपकी फरमाई हुई बातों का असली मुजाहरा है और सबूत है कि अब अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, मगर आप इससे भी कहीं बढ़कर दिखाया कि जान लेने वालों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त कर दी और वोतों को बाइज्जत बरी कर दिया। शुक्रिया। तो बेटी ने बड़ा अच्छा जो है इस पे तबसरा किया। जो माफ़ी है ये हर किसी के लिए एक पैगाम है, और आपको शायद अंदाज़ा हो कि माफ़ करना इतना आसान काम नहीं है ना। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसका तजर्बा देख सकते हैं कि अगर आपके साथ कभी किसी ने कुछ बुरा किया हो तो क्या आपने उसको आसानी से माफ़ कर दिया या आज तक अपने दिल में नफरत लिए बैठे हैं। तो मसीह खुदावन ये सिखाते हैं कि हाथों में कील, पाँव में कील, सर पे नुकीला कांटों का ताज और बदन जो है वो जख्मों से छलनी हुआ है, उसके बावजूद मुंह से ये बात निकल रही है कि ऐ बाप इनको क्या कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज मैं एक बंदे की स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कहा भी अगर आप किसी से नफरत करते हैं इसका मतलब आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और जब वो बंदा जिससे आप नफरत करते हैं वो जब आप उसको हंसता हुआ देखेंगे ना तो आप और गुस्से में आएंगे। इससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे किसका नुकसान है? आप ही का है। क्यों ना हो कि आप दूसरों की खुशियों को अपना लें, इसका फायदा ये होगा जो बंदा आपको गुस्से में देखना चाहता ना वो आपको हंसता हुआ देख के खुद परेशान रहेगा कि ये तो मैं इसको गुस्से में देखना चाहता था। मसीही ईमान का जो पहलू है वो ये है। आए अपने सरों को झुकाएं और दूसरा कलमा शुरू करने से पहले भाई इरफान आगे आ जाएं और इस्तिहाई अंतरा जो है वो पेश करेंगे सीबी कलिमात के हवाले से। इसके साथ साथ फिर सिलसिला जो है आगे चलता जाएगा। चलो शुरू करो। है बाप कर दे मुआफ इनको, मेरे मसीहा की ये दुआ थी। तू आज होगा मुकीम फिर दो, वो मरते डाकू की ये जज़ा थी। उबर्रा कुर्बान है जो अज़ल से, उसी का सब पे रहम तो देखो। मुआफ करता है दुश्मनों को, रब्बे अज़ल का कदम तो देखो। किया है कुर्बान लुत्फ़ दिल को, खुदाए रहमान का करम तो देखो। तो ये एक सिलसिला है, एक कड़ी है। बहुत दफ़ा हम ये देखते हैं
کہ لوگ کئی دفعہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں. دنیا میں مذاہب مختلف ہیں اور ان میں اگر ایک بات آپ سامنے رکھیں نا وہ آپ کو سمجھ لگے گی کہ لوگ مسیحیوں کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا شرک سمجھتے ہیں. مسیح کی صلیبی موت کو نہیں مانتے اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم نامکمل مسیحی ہیں. مسیح کی خالی قبر، مردوں میں سے جی اٹھنا اور خدا کا بیٹا جو جسد خاکی اوڑھ کر اس دنیا میں آیا. اگلا جو کلمہ ہے، دوسرا کلمہ لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 43ویں آیت. یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ریمشا کومل جاوید آئے گی اور وہ اس کلمے کو پیش کریں گے. دوسرا کلمہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہ دردناک لمحات جب انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف کے علاوہ کچھ اور یاد نہیں رہتا. مگر یہ کون تھا کہ اس دردناک موقع پر بھی دوسروں کی ہی فکر ستا رہی تھی. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دیوانہ تھا جو اپنے ہی لہو کے خون پی کر خود اپنی پیاس بجھا رہا تھا، کیونکہ ایک دیوانے کی پیاس اس کے اپنے لہو کے سوا کسی اور شے سے نہیں بجھتی. آپ نے کسی کی محبت میں پتھر کھاتے لوگوں کو پڑھا اور سنا ہوگا، لیکن محبت میں ایسی دیوانگی کی مثال نہیں ملتی کہ محبوب اپنی محبوبہ کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ نیز اکبر کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑے اور وہ روشنی دینا بند کر دے، پھر ستارے حرکت میں آ جائیں اور آسمان اور زمین میں ایک ہلچل مچ جائے، کیونکہ یہ محبوب اپنی ہی محبوبہ کے ہاتھوں اپنے ہی لہو کے خون لذیذ مہک کی مانند پی رہا تھا. آسمان رو پڑا اور زمین لرز اٹھی کہ ہائے یہ کیسی محبت ہے. آپ اپنے ساتھ لٹکے اس باغی شخص کو جنت الفردوس کا دعوت نامہ جاری کر رہے تھے، جس نے خود کو صرف یاد رکھنے کی فریاد کی، یعنی زمانہ مستقبل میں جب آپ اپنی بادشاہی قائم کریں گے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس ذات سے مخاطب ہوں وہ وقت اور زمانوں سے کہیں بالاتر ہستی ہے، جس کے نزدیک نہ کچھ تھا اور نہ ہی کچھ ہوگا، بلکہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے. بادشاہی قائم ہو چکی ہے، وقت اس کی مٹھی میں بند ہے. اس کلمہ میں در حقیقت الوحدیت کا دعویٰ بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو اس ڈاکو کو فردوس کا دعوت نامہ فراہم کر رہا ہے وہ کون ہے. کوئی نبی یا پیغمبر تو ایسا نہیں کر سکتا اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر لوگوں کو فردوس کے دعوت نامے تقسیم کرتا پھرے یا اپنے ساتھ اوروں کو بھی فردوس میں لے جائے، وہ بھی کسی ایسے شخص کو جس کی شہرت کچھ اچھی نہ ہو بلکہ بدنامی زمانہ ڈاکو یا باغی ہو. لازمی طور پر یہ خود مالک اور آقا ہے، جسے خود بھی یہ معلوم تھا کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور ساتھ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہا ہوں. دراصل یہ خود جنت کا مالک تھا جس نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. اگر جنت کسی اور کی ہوتی تو لازم تھا کہ پہلے اس سے اجازت طلب کرتا، ساتھ ایک ڈاکو کو بھی لے کر آ رہا ہو، مگر ایسا نہیں ہے. یہاں نبی سے بڑا موجود تھا جس کی جوتی کا تسمہ ایک بڑا نبی بھی خود کو کھولنے کے لائق نہیں سمجھتا. اس کلمہ میں بدن کی بات بالکل بھی نہیں کی گئی بلکہ صرف روح کی، اور اس دوسرے ڈاکو نے اپنی روح کے لیے ہی التجا کی. جیسا کہ پہلی تحریروں میں بیان کر چکی ہوں کہ یہ دونوں اشخاص صرف ڈاکو ہی نہیں بلکہ باغی بھی تھے جو رومی حکومت کا تختہ الٹنے کے جرم میں موت کی سزا بھگت رہے تھے، بلکہ تینوں ہی باغی کی حیثیت سے مسلوب ہوئے، کیونکہ مسیح خداوند کا جرم بھی یہ تھا کہ بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کیوں کر ہو سکتا ہے. دراصل یہ دونوں باغی بھی کسی وقت میں اس کے پیروکاروں میں سے تھے جو آپ کی تعلیم، قدرت اور اختیار سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن سخت حالات کے تحت آپ کی تعلیم کو فراموش اور ترک کر کے مجاہدین کے گروہ میں شامل ہو گئے.
ताकि रोमी हुकूमत से ताकत के दौर पर आज़ादी हासिल करें। और इस वक्त की बात है जब पिलातुस ने गलील के इलाका में 10,000 यहूदियों को मसलूब कर दिया। मेरे ख्याल में इन दोनों ने किसी वक्त बपतिस्मा भी लिया होगा और आज जिंदगी के आखिरी लम्हात में इन दोनों की निगाहें किसी न किसी सूरत आप पर ही जमी हुई थी। पहला शख्स भी आपसे कुछ मांग रहा था, लेकिन इससे कोई जवाब ना दिया और खामोश रहे, क्योंकि उसे अपनी निगाह अलूदा फितरत और ये जहान बहुत प्यारा था, जिसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था और हुकूमत वक़्त का मुजरिम था। पहले कलमा में आपने बाप से उनकी माफ़ी की दरख्वास्त की, जिसमें ये दोनों शामिल नहीं थे, क्योंकि आप अपने मुजरिमों को अनफरादी तौर पर तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के मुजरिम को माफ़ करने का हक हासिल नहीं रखते। और ये पहला डाकू आपसे यही बात कह रहा था कि रोमी हुकूमत के खिलाफ इकदाम उठाएं और सलीब पर से उतर कर मुझे भी उतारें। लेकिन ये आपकी मंशा के खिलाफ था, बल्कि इसी तरह जिस तरह इब्लीस से आजमाते जाने के वक़्त आपने पत्थरों को रोटी ना बनाया, और यहाँ पर भी इब्लीस के कर्म दिखाई देता है। किसी तरह ये सलीब पर से उतर जाए और निजात का काम अंजाम को ना पहुँचे, क्योंकि वो भी जानता था कि ये उतरने की भरपूर कुदरत रखता है। जबकि दूसरे शख्स के बदन में मौजूद रूह की बात की, जिस पर हुकूमत वक़्त का कोई दो इख्तियार नहीं था, और उसने इस दूसरे शख्स के पहले जान देकर फरदौस से पहुंचकर उसका इस्तकबाल किया, क्योंकि इस दूसरे को ये मालूम हो चुका था कि यीशु मसीह की बादशाही यहाँ की ही नहीं, बल्कि वो अब्दी बादशाही और हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है। आप फौरन बोले कि तू कल की बात करता है, मैं आज ही तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आपको इससे पहले डाकू की भी फिक्र थी कि बात को समझे और इकरार करे और हलाकत से बच जाए, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करते कि किसी को घसीट कर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएं, बल्कि उसे जो खुद अपनी रजामंदी से जाना चाहे और जीते जी आपके साथ तल्लुक कायम करने, इसलिए कि मरने के बाद आपके साथ किसी का तलक नहीं जुड़ पाता। जैसे पीछे से दुआओं का अनवार लग जाए, पहला बागी अपने साथ साथ अपने साथी के लिए भी इल्तिजा करता है कि खुद भी बच जाए और हमें भी बचा, लेकिन ये दूसरा शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा शख्स के लिए कोई दरख्वास्त नहीं करता कि उसे भी अपनी बादशाही में याद करना। डाकू को बराह रास्त सिर्फ मुखातब करते हुए सिखाता और याद दिलाता है कि उसे पहचान ले कि ये कौन है और वो खुद भी दुख में नहीं है। अपना शख्सी तलब इसके साथ जोड़ ले, इकरार कर ले और तू भी इसके साथ आ जा। मगर उसे अपनी जिस्मानी जिंदगी की फिक्र और उसी से प्यार था। इस अच्छे मुकाम में जाने के लिए हर किसी को अपनी मर्जी का शामिल होना लाजम है, जिसके लिए उसे अपने गुनाह का इकरार करके माफ़ी मांगने और खुद को सुपुर्द करने के लिए खुदावंद की तरफ से खुद कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मसीह इसी इंतज़ार में रहता है कि पहला कदम आप खुद उठाएं। आपने इन दिनों पहले ही अपनी जान दे दी, लेकिन इस डाकू को तौबा तक कई नौबत का मौका नहीं दिया गया ताकि उसे हलाकत से बच जाए। अब जो खुद ही बचना ना चाहे उसे रिश्तेदार, दोस्त, मुनाद या खुदा के खादम भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये पहला शख्स निजात दहिंदा के बहुत करीब मौजूद था, जैसे कि मीठे चश्मे के पास प्यासा, मगर इसने पानी के लिए अपने हाथ ना खोले और प्यास का इजहार ही ना किया। जबकि दूसरा उसे मुलाकात करता है और याद दिलाता है कि हमें तौबा की ज़रूरत है और मुनादी करता है, जो इसके साथ साथ नीचे खड़े बहुत से लोगों ने भी सुनी। ये वो मजदूर था जो सबसे आखिर में खेत में आया और मालिक ने उसे पूरा अजर दिया, बल्कि उसी लम्हा दे दिया आज ही। इस दूसरे शख्स के अल्फाज आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं कि तौबा करो और उसकी बादशाही में शामिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि इसके पहले की मानद सुनहरी लम्हात और मौका रेत की मानद मुट्ठी से निकल जाए, क्योंकि जन्नत सिर्फ एक है, जबकि दूसरा मुकाम जहन्नम ही रह जाता है। यूँ कह लीजिए कि कुर्बतुल मसीह का नाम जन्नत है और इससे दूरी का नाम जहन्नम है। जहाँ पर यीशु मसीह वहाँ जन्नत है, और जहाँ वो नहीं है उसे जहन्नम कहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मसीह है तो आप भी उसे जन्नत हैं, अगर नहीं है तो फिर लम्हा फिक्रिया ये है और शानदार मौका मौजूद है। अब तसव्वुर करें कि एक शख्स के तौबा करने पर आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं,
तो इन फरिश्तों का मालिक और आका इस दूसरे डाकू की तौबा और वापसी पर किस कदर खुश हुआ होगा। और मेरे ख्याल में इस दूसरे शख्स ने इस घड़ी खुदावन यीशु मसीह के जख्मों पर मरहम लगाया और उसके दुख दर्द को कम किया। लेकिन जो तौबा नहीं करते और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, वो आज ही उसके दुखों में इजाफा करते हैं, इस पहले डाकू की तरह। शुक्रिया। एक बड़ी खास बात जो बेटी ने पढ़ी है कि जे कोई खुद नहीं ना बचना चाहता, मसीह ते ईमान नहीं लेना चाहता, कोई खादम, कोई पास्टर, कोई एल्डर, डीकन, मुबशर भी कुछ नहीं कर सकता। और बहुत दफा जो लोगों को कहा जाता है कि तौबा कर लो, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह नूं दे दिओ, ते बजाए इस दे कि वो इस गल ते यकीन रखण और खुदा दे नज़दीक आण, उन्हां दे कोल ढेर बहाने हुंदे ने। वो कोई मिशन दा लैके होए, कई दफा लोगों को कहने जी तौबा कर ले, बपतिस्मा कहते जिहड़ा निक्के हुंदे होया सी वो की सी, ठीक है। अब वो अपनी मखसूसियत को ही बपतिस्मा करार देते रहते हैं। सो इसलिए याद रखें कि आप खुदा के हुजूर अगर जाएंगे तो किसी मिशन की वजह से नहीं जाएंगे, उसके कलाम को मानकर उस पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी उसको देकर जाएंगे। आमीन। सो एक गीत है, आंसुए कलवरी चले। आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले, सब कहें आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले, मेरी नजात के लिए अबदी हयात के लिए लहू लहू बदन तमाम वो बाप से है हम कलाम, ए बाप इनको माफ कर, ए बाप इनको माफ कर, आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले। आए अपने सरों को झुकाएं। हम तीसरा कलमा सुनने से पहले खुदावंद की हुजूरी में दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने पाक फजल में आगे बढ़ाता रहे, और भाई इरफान इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। सब अपने सरों को झुकाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, और हमने तेरी मोहब्बत को इसी से जान लिया कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर सलीब पर दे दिया है ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा दुआ करता हूँ जितने बहन भाई खुदा तेरे कलाम को कलमात की सूरत में हम तक पहुँचा रहे हैं, चाहता हूँ कि तू अपने रूह के वसीला से बड़ी रहनुमाई करना। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सरों को उठाएं, आंखें खोलें। देखने को ये जो 7 कलमात है ना, अगर आप इन पे गौर करें तो इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। आप पहले कलमे में देखें माफी की बात की जाती है, दूसरे कलमे में देखें एक डाकू गुनाहगार को जो मसीह पर ईमान लाता है, और कोई लंबा चौड़ा उसने ये नहीं कि बड़ी वो तलावतें करता था, ये नहीं कि वो बड़ी दुआएं करता था, उसने तो सारी जिंदगी चोरियां की, डकैतियां की, लेकिन एक लम्हे में ही वो खुदा के तख्त के पास पहुंच गया। और अगला जो पैसेज अभी आपके सामने पढ़ा जाएगा, अगर आप उस पर भी गौर करें तो ये पता चलता है जैसे माफी के बारे में, जन्नत के बारे में है, तो यहाँ यीशु मसीह सलीब पर होते हुए भी अपनी माँ के तलब से बेखबर नहीं है बल्कि बाखबर है। जहां मसीह खुदावंद को मेरी और आपकी फिक्र है कि उसके मार खाने से मैं और आप निजात पा जाएं, वहां उन लम्हात में मसीह खुदावंद अपनी माँ के बारे में भी फिक्रमंद है। सो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर
26 है, 26 और 27 का दूसरा हिस्सा, जिसमें लिखा है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। सो इस कलाम की बात को पेश करने के लिए हमारे सामने खुदा के खादम एल्डर बशीर साहब तशरीफ लाएंगे और उनके वसीला से हम इस कलमे को सुनेंगे। थोड़ा आगे हो जाए। हालेलुया। मसीह की मोहब्बत में सबको सलाम। जो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलमा आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो एक जिम्मेदारी का कलमा है। अपनी माँ को शागिर्द के हवाला करते हैं और कहते हैं कि देख तेरी माँ ये है, और उससे कहते हैं कि तेरा बेटा ये है। तो आइए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस कलमा को सुनते हैं। ये तीसरा कलमा है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये क्यों कर मुमकिन है कि कोई भी इंसान इस खाकी बदन की खोखली बांसुरी से इस खालिक और मालिक के सुरीले और जिंदगी में रस घोलने वाले अनमोल लफ्ज़ों के मीठे सुरों के राग अलाप सके? हाँ, मुमकिन है। अगर इस खाकी बदन में रूह हक को आने दिया जाए और खुद को पूरे तौर पर इस पाक हस्ती के सुपुर्द कर दिया जाए। तीसरे कलमे को मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा कहा जाता है, जो कि एक हकीकत है, लेकिन इन कलमात को बयान करने वाला बजाते खुद सरापाई मोहब्बत है। इसलिए इसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज और कलमा अपने अंदर मोहब्बत का समंदर और नदियां समोए हुए हैं। इस खुदा के बर्रे के कंधों पर किसी फर्द वहद की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि तमाम जहान की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी और बोझ था जो कि कीलों से जकड़े हुए हाथों के बावजूद वो थामे हुए था, क्योंकि ये वो मिशन था जो बाप ने इकलौते बेटे के सुपुर्द किया। और बेटा इस अजीम जिम्मेदारी को अपनी अजीम दुखियारी और बेबस मां को ना भूला और बुढ़ापे में इसके रहने का खूब बंदोबस्त किया। ये वो वक्त था जब सूरज ने रोशनी देना बंद कर दी और हर सू अंधेरा था और आसमान पर डगमगाते सितारे नमूदार हो चुके थे, क्योंकि दुनिया के नूर को बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। और मौका से फायदा उठाते हुए मां और कुछ दूसरी औरतें इस बरहना मसलूब अशखास के करीब आई, जो पहले दूर से सब देख रही थी, क्योंकि रोशनी में इनका सलीब के करीब आना मुमकिन न था। अल्फाज तो आम से हैं जो कोई भी शख्स अदा कर सकता है कि ए बाप इनको मुआफ कर दे, या ये कि मैं तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग खुशफहमी का शिकार भी तो होते हैं और हवाई दावे करते हैं। सलीब के पास खड़े लोग कहते भी होंगे कि हालत देखो, और फरदौस में जाने और ले जाने की बातें हो रही हैं। आज भी ये अल्फाज कोई भी शख्स कह सकता है कि मैं प्यासा हूं। हर रोज ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मगर ये आम से अल्फाज जब खुदा यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से सादर होते हैं तो फिर आम नहीं रहते, बल्कि बेहद खास हो जाते हैं। इन पर घंटों बोला जा सकता है और कई किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये अल्फाज समुद्र की सी गहराई रखते हैं, जो कि समुद्र के खालिक और मालिक के मुंह से निकले। जिन अल्फाज से
आपने अपनी माँ को पुकारा, यानी ए औरत या खतून या मलका, ये अल्फाज मोहब्बत से ही अकीदत रखने वालों के लिए तकलीफ और हैरत का बायस रहे कि यीशु मसीह ने माँ कहने की बजाय ए औरत क्यों कहा। और कुछ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये लिखने वाले से गलती हो गई होगी या तर्जमे में मसला है। याद रहे कि ये शागिर्द के लिखे अल्फाज हैं जो इंसान होने के साथ बतौर खुदा पेश करता है। दरअसल हम बहुत सारे मकामात पर हकायक से नजरें चुराते और हकायक को इज्जत देते, रूगर्दानी करते हैं और बात को समझना भी नहीं चाहते कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। खुदा यीशु मसीह की इलाही और बशरी दोनों जातें एक साथ काम करती थी। और जहां पर भी आपने मुकद्दसा मरियम को और दिया खतून के लक़ब से नवाजा, यहाँ आपने अपनी अलोहियत को सामने रखा। लड़कपन में जब आप यरूशलेम में ही रह गए थे तो माँ होते हुए मुकद्दसा मरियम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए परेशानी, गुस्से और नाराजगी से आपके साथ मुखातब होती हैं। जो फितरी बात थी कि एक माँ का बेटा दिनों तक खोया रहे, ये देखकर ये दुख वो ही जानती थी कि वो किस कर्ब से गुजरी होगी। मगर आपने रद्द-ए-अमल के तौर पर इसे याद दिलाया कि ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के यहाँ रहना जरूर है। सो मेरे भाई मेरी बहन, जब बचपन में यीशु मसीह हैकल में कलाम कर रहे थे तो मुकद्दसा मरियम से वो जुदा हो गए थे। तो उस वक्त जब मुकद्दसा मरियम ने फिक्रमंद होकर कहा कि हम तुझे ढूंढते हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी अलोहियत का इजहार करते हुए कि मैं क्या हूँ, मैं खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। तो उसने कहा कि मुझे आपसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि अपने बाप के घर में भी रहना है। हालेलुया जी। सबको छोड़कर अपने बाप के यहाँ आना, वापस जाना जरूर है। मगर मैं इस दुनिया का नहीं हूं और इंसानी रिश्ते से कहीं बढ़कर इस टूटे हुए इलाही रिश्ते को जो अहम है जोड़ने आया हूं, जिसमें तुम सब शामिल हो। मुकद्दसा मरियम अच्छी तरह से जानती थी कि ये खुदा का बेटा है, मगर इसके मिशन से पूरे तौर पर वाकिफ ना थी। लेकिन तवक्को जरूर जरूर रखती थी कि ये किसी रोज कोई बहुत खास काम और ऐलान करेगा। इसीलिए काने गलील की शादी में भी आप इसे याद दिलाते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया कि खुद को सब पर जाहिर करूं। फिर भी इसे अपनी मां की ममता भी अजीज थी और इस घड़ी खुद को शागिर्दों और पानी भरने वालों पर ज़ाहिर कर दिया, जिसके बाद इसके शागिर्द 100% जान गए थे कि वो दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं और इनका वास्ता हक ताला से पड़ चुका है, जो मुजस्सम होकर आसमान से उतरकर जमीन पर जाहिर हुआ। खुदा यीशु मसीह ने जब भी आपको ए औरत या खतून कहा तो ये खास बात इसी के समझने के लिए थी, क्योंकि वो इसे याद दिलाते हैं कि तू कौन है। मुकद्दसा मरियम यहूदी होने के नाते शरीयत की हाफिज़ा थी, जिसने दीनी मदरसा में परवरिश पाई और पैदाइश की किताब से अच्छी तरह से वाकिफ थी। इसलिए आप इसे याद दिलाते हैं कि जिस औरत का जिक्र इब्तिदा में हुआ कि उसकी नस्ल सांप के सर को कुचलेगी, वो औरत तू ही है। आप सलीब पर मौजूद हैं, माँ पास खड़ी जवान बेटे के दुख में हर चीज भूली बैठी है और खंजर दिल के आर पार हो चुका है, मगर आपने ए औरत कहकर इसे इज्जत दी और बागी अदर में किए गए
अपनी और आसमानी बाप के तहरीरी कलाम और मंसूबे की तरफ उसकी तवज्जो मरकूज कराई कि तू आम औरत नहीं बल्कि जिस कलाम को पढ़ती और चूमती हो इसमें तेरा ही तज़किरा किया गया है। और आज उस सांप ने तेरे जिगर गोशे की एड़ी पर काट लिया है, लेकिन जिंदा होकर मैं इसके सर को कुचल दूंगा और फतह का झंडा लहरा दूंगा। हालेलुया जी। तो भाग्यदल में जब खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में मैं तजाद डालूंगा, वो तेरी सर को अपनी एड़ी से कुचलेगी, तो यही खुदा का कलाम था और यही कलमा था, यही यीशु मसीह जो उस सांप को अपने पांव तले कुचलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सवाल पैदा होता है कि वो इंसान जिसका ये दावा हो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, यानी हमेशा जिंदा हूं, वो मौत के वक्त ऐसा क्यों कहता है कि जबकि ये माँ तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन माँ थी जिसका बेटा हमेशा जिंदा और मौजूद था और अपनी माँ की खबरगिरी कर सकता था, लेकिन बात कुछ और थी, और वो ये कि आप बदन में रहते हुए बदन के काम अंजाम दे रहे थे, क्योंकि इसके बाद आप अपने जलाल में दाखिल होने वाले थे और फिर ये माँ और बेटे का रिश्ता खत्म और तमाम हुआ के नारे की गूंजने वाली थी। आपने जीते जी अपनी माँ को ना सिर्फ अपने शिगिर्द के सुपुर्द किया बल्कि कलीसिया में शामिल कर दिया। अब वो भी यूहन्ना की माँ होते हुए मसीह खुदावंद को जो बादशाह का बादशाह है उसे सजदा कर सकती थी। रिश्ता बदन का था जो बदन के साथ इख्तिताम को पहुंचा। अब जी उठने के बाद सब तब्दील हो चुका था। माँ को एक बेटा मिल चुका था, अब इसे इस बेटे की जरूरत नहीं रही बल्कि एक निजात हिंदा मालिक और आका की, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा। खुदा और कलाम खुदा हर बात में एक तरतीब और बैलेंस को कायम रखता है और इस कलमा में यही नजर आता है कि किस तरह से इसने तमाम तर काम को सर अंजाम दिया। याद रहे कि मुकद्दस मरियम बशरियत के एतबार से यीशु मसीह की माँ थी, ना कि उस कलमा की जो अज़ल से था। आज यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर अलाही ज़ात है और अलाही ज़ात की ना तो कोई माँ ना कोई बशरी माँ होती है और ना ही बाप, इसलिए इसे खुदा की माँ कहना भी गैर मुनासिब बात है। सो खुदा आपको इस कलमा के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। तो ये याद रखें, अगर आप बेटी हैं या बेटा है, प्राइज दोनों के ही एक हैं और वो कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना और जिस मुल्क में तू जाता है वो तुझे तेरी उम्र भी दराज करेगा और तुझे बरकत भी देगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, मेरे वालिद साहब की डेथ को 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया। खुदा ने बहुत बरकत दी है, तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जितना खुदा ने बरकत से नवाजा है, काश के मेरा वालिदा जिंदा होता, कितना खुश होता है ना। माँ बाप के होते हुए आप उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, ठीक है। और मैं रात को चर्च में बता रहा था, कई लोग अपने माँ प्यो की इज्जत नहीं करते तो किसी अमीर बंदे को कह के काश तू मेरा अबू होंदा है। अमीर नू अबू बनाने की बजाय अबू गरीब ही है तो उन्होंने अबू तो गरीब माँ मनो, क्योंकि बरकत का वादा बगाने अबू नू अबू बनाता नहीं, बल्कि ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ तुखम हो, जिसकी वजह तो ਤੁਹਾਡਾ दुनिया से वजूद आया हो। और बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। याद रखें, सलीब का मुकाशफा ऐसा मुकाशफा है कि लोग इसको वही समझ सकते हैं, जैसे लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक क्या है, बेवकूफ़ी है। और किसी शायर ने कहा है, मसीह है मौत का फाते, मसीह है मौत का फाते, कोई माने या ना माने, हयात
जावदा पे काबिज, कोई माने या ना माने। और फिर आगे शायर कहता है, सलीबी मौत के मुनकिर, सलीबी मौत के मुनकिर खाते ठोकरें लेकिन, सलीबी मौत के मुनकिर खाते ठोकरें लेकिन, हुई है बायस बख्शिश, यानी सलीब हुई है बायस बख्शिश, कोई माने या ना माने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी नहीं। याद रखें, जो बंदा और बंदी सलीब के साए तले से गुजरेगा और मसीह को खुदा का बेटा कबूल करते अपना निजात जिंदा मानेगा, निजात उसी ही की है, बाकी निजात से खाली रहेगी। ठीक है, सो आए हम एल्डर आरिफ के साथ मिलकर अगला कलमा जो है उसके पेश किए जाने के लिए दुआ मांगेंगे। सब अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आज के कलमे के लिए धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लिए सारे फजल के लिए, तेरे लिए सारे नेमतों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। सो चौथा कलमा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 27 बाब की 46 और फिर मरकस की इंजील 15 बाब की 34 आयत में ये अल्फाज कुछ इस तरह से मरकूम है। यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबकतनी। क्या कहा? एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो लम्हा है हिस्ट्री में, जब से दुनिया है या दुनिया से पहले, ये पहला वाकया था कि मेरे और आपके गुनाहों की वजह से बाप भी बेटे से रूपोश हो गया, बाप ने भी अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी खामोशी को जो है वो जब बर्दाश्त ना कर सका तो उसने कहा कि बाप मुझे तूने क्यों छोड़ दिया। इस पैसेज को, कलमे को पेश करने के लिए हमारी बेटी अजीका आजमल आएंगी और वो इसको पेश करेंगी। इसी में आप सबकी सलामती हो। वॉल्यूम बढ़ा चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले कलमे के बाद एक मर्तबा फिर आप खुदा से मुखातिब नजर आते हैं, लेकिन एक वाज़ह फर्क दिखाई देता है कि पहले कलमे में ऐ मेरे बाप, ऐ बाप कहकर पुकारा, लेकिन अब की बार ऐ मेरे खुदा। और यूं महसूस होता है कि थोड़ा पास करना, ठीक है। और यूं महसूस होता है कि जैसे आप शिकवा और शिकायत कर रहे हों, इसलिए कि जुमले में क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और सवालिया निशान भी मौजूद है, लेकिन ये शिकवा और शिकायत का मतलब नहीं था। अब खामोश हैं और आज आसमान से किस किस्म की आवाज़ क्यों नहीं आई। और जो बाप और जो बेटा बाप से बहुत खुश था, आज गम से नढाल और खामोश क्यों है। क्योंकि दिल को चीर देने वाले तूफान से भी ताकतवर सन्नाटा अपने कदमों पर खड़ा अदालत कर रहा है और मुजरम उसकी मौजूदगी और होने का ऐलान कर रहा है। ये सुनने वाले ये जान लें कि वो अकेला नहीं, क्योंकि बाप उसके साथ है। तुम्हारे बाप आदम की नुमाइंदगी करते हुए उसके हिस्से के अल्फाज जो उसने अदा नहीं किए थे, आज अदा कर रहा हूँ। बाप ने बेटे को लम्हे भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा और ना ही उससे मुड़वाड़ा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। कई घंटों से मुसलसल जिल्लत को सहते हुए जिस्म से बहुत खून बह चुका था और तमाम जिस्म छन्नी हो चुका था, यहाँ तक कि आपको पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कांटों के ताज ने और खून के और सारा चेहरा लहूलुहान हो चुका था। जहन में रहे कि अदालत हो रही है, तमाम जवानों के गुनाह अपने ऊपर उठा रखे हैं और आप एक मुजरिम की हैसियत से सजा भुगत रहे हैं और इंतहाई तकलीफ में मुबतला हैं। इसके बावजूद पूरे होशो हवास में है कि मैं कौन हूँ, किस मकसद के तहत आया हूँ, किसे पुकारना है और बाप कहना है या खुदा का कहकर मुखातिब करना है। अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि ये शिकायत थी
और बाप ने कुछ लम्हों के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन ना तो ये शिकायत कर सकते हैं। हवाला दिया जाता है कि खुदा बदी को पहचान नहीं सकता, इसलिए कि उसने अपना लौता बेटा हमें बख्शा। इसकी तरफ से नहीं, हम ये नहीं छोड़ते, वो ही हमें छोड़ता है, इसलिए कि तू सब जानने के बावजूद पुकारता है कि आदम तू कहाँ है, और इकरार और तौबा करने के लिए भागता है। वो तो हमें अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में उठा लेता है, और यहाँ पर तो अपना लौता और प्यारा बेटा मौजूद है जो सेरे पाठ है और कभी शिकायत का मौका नहीं देता। दरअसल बाप का दिल भी छन्नी हो चुका था, तमाम कायनात में उदासी का आलम अंधेरा जा चुका है, और बाप जिसने आसमान से आवाज़ आती है कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज अपने बेटे के गम में कैसे खुश हो सकता है, इसलिए कि कोई जवाब नहीं। आप शिकायत नहीं बल्कि इस दुख की घड़ी में तिलावती कलाम पढ़ रहे थे और बाई ज़बूर को पढ़ रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग दुख की घड़ी में दुआ के तौर पर पढ़ते थे कि तसल्ली हासिल हो। गोया कि आप दुनिया के सबसे बहादुर और ताकतवर इंसान थे, लेकिन फिर भी इंसान थे, जिसे जिस्म था और दूसरे इंसानों की तरह दुख, दर्द और कमजोरी महसूस करते थे। आपने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बल्कि इस पूरे ज़बूर को पढ़ा और मुकम्मल किया, क्योंकि आप अधूरी बात नहीं करते थे। हम भी जब दुआए रुबानी दोहराते हैं तो सिर्फ ऐ हमारे बाप कहकर खामोश नहीं हो जाते, बल्कि उसे पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं और आमीन कहते हैं। आपने भी ऐसा ही किया। लेकिन नीचे खड़े कुछ लोग कहते हैं कि एलिया को बुला रहा है, और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सिकड़ने पर रख कर उसे चुसाया। दरअसल एक खास किस्म की शराब थी जो रोमी सिपाही पीते थे, जिसकी बदबू खत्म करने के लिए सिरका इस्तेमाल करते थे, जो उनके पास हमेशा मौजूद होता था, और उनकी कोशिश होती थी कि स्लीप पर लटके शख्स को ये चुसाया जाए ताकि उसे दर्द का एहसास भी ना हो और वो जल्दी से जल्दी मर जाए और उनकी ड्यूटी खत्म हो और वो घर को लौट जाए। इसलिए एक शख्स जल्दी से आगे बढ़ा, मगर दूसरे ने उसे रोका कि रहने दो, देखते हैं भला एलिया इसे बचाने आता है कि नहीं। मतलब ये कि अभी उसे जिंदा रखते हैं और तमाशा देखते हैं। ये वो आलमी नमूना था जो आप पेश कर रहे थे कि दुख के बावजूद ध्यान खुदा और उसके कलाम की तरफ होना चाहिए और दुश्मन के लिए दुआ करनी चाहिए। अदालत और इंसाफ वो आप करेगा। आपकी तकलीफ और दर्द के ये लम्हात अरुज पर थे। ज़बूर लिखने वाला खुदा का बंदा है जो अक्सर अपने दुखों और मुसीबतों का बयान करते हुए खुदा से मुखातिब करता है कि उसे मुसीबतों से छुटकारा बख्शे। और इस रोज़ आप वहाँ मौजूद और आपके तमाम यहूदी तवज्जो और उसकी ज़बूर की तरफ लगा रहे थे कि ये ज़बूर मेरी ही मुतालिक है, जिसको आज मैं अपनी ही ज़ुबान से पढ़ रहा हूँ और तुम्हें सुना रहा हूँ। मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूँ। आगाज़ में आपने यसाया नबी की किताब से अपने मुतालिक हवाला तिलावत किया, जिस पर लोग तैश में आ गए। आज भी वो पास खड़े थे, लेकिन बेबस खड़े थे और उसकी ज़ुबान मुबारक से तिलावती कलाम पर सुन रहे थे जो उस पर लागू हो रही थी। इस ज़बूर की चंद आयतें दरपेश हैं। वो सब जो मुझे देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुंह चढ़ाते हैं और सर हिला हिला कर कहते हैं, मैं पानी की तरह बह गया और मेरी सब हड्डियाँ दब गई। मेरा दिल मोम की मानित हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, क्योंकि कुत्ता ने मुझे घेर लिया। मुझे की बात इस ज़बूर के फौरी बाद 23 ज़बूर का आगाज़ हो जाता है कि खुदा मेरी जुबान है, मुझे कमी ना होगी, वो मेरी जान को बहाल करता है। मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे साय से मुझे सिर सबज शादमान हयात का ये दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, दुख की इस घड़ी में खुदा के कलाम को नहीं भूलता, बल्कि बुलंद आवाज से पुकारता और वहाँ मौजूद लोग उसकी शिकायत लगाते कि देखो ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। सच कहूँ तो शिकायत बनती थी और वहाँ मौजूद लोग, और वो ये कि ऐ बाप, जब बदन में उसके वालिदैन ने गुनाह किया तो वो तन्हा थे और शर्माते थे, और आपने उनको बदन ढांपने के लिए चमड़े के मजबूत कुर्ते बनाकर पहनाए, मगर उन्होंने तेरे बेटे के कपड़े उतार कर उसको हजूम में बढ़ाना कर दिया
और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन ये ज़ात बेमिसाल और बेमिसाल जो बदला लेने की बात नहीं करती, बल्कि सुधारने और सुनने का मौका देती है और आखिरी सांसों तक माफ़ी और बख्शिश का दरवाज़ा खटकाती है। क्या आपको कभी इस बात का तजर्बा और एहसास हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया और आप चिल्ला उठे कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अपने अंदर यह एहसास होना भी इस कदर गहरा था कि दलील और सबूत है जो दरअसल ये अल्फाज आदम को अदा करने चाहिए थे जब अदन से निकाल दिया, और वहाँ दुख और तकलीफ़ों में बगैर कुर्बानी के साथ साथ आदम के हिस्से के ये अल्फाज भी आपने अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किए, यानी आदमी सामने अपने अव्वल की जगह खड़ा है, उसकी नुमाइंदगी और वकालत कर रहा है, क्योंकि अगर आपको छोड़ा होता हुआ तो आप ऐ बाप कहते, अगर आपने आदम की जगह पर खड़े होकर ऐ मेरे खुदा और बनी आदम को सिखाया कि इकरार और इजहार करना इस कदर ज़रूरी है। शुक्रिया। आप लोग जब आप ये देखें, मेरी भी इस वीक माइक पे अच्छी आवाज़ आ रही है, तो आपने जब कलमा सुनाना है तो आपको भेज दिया गया है, तो अखबार भी पढ़े, कलमा सुनाना है। तो आए हम गीत का इस्तेमाल अंतरा गाएंगे, उसके बाद फिर जैसी का की बारी है। फतवे है सर पे जड़ दिए, मेघों से हाथ भर दिए, फिजा में एक गुबार है, फलक दिया इश्कबार है, मेरे मसीह ने जान दी है कायनात के लिए, आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले। कलवरी की राह इतनी आसान नहीं है, ये कठिन है, इसमें आपको अपनी खुदी का इनकार करना पड़ता है, अपने आप को, अपनी मैं को मारना पड़ता है, और फिर खुदा से आपको आपकी मंजिल मिलती है। सो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में मरकूम है, यीशु मसीह ने 5वां कलमा कहा, मैं प्यासा हूं। किसी शायर ने कहा है कि आबे हयात के मालिक को, जिसने दुनिया जहां नदी नालों समुद्रों जजीरों का मालिक है, आबे हयात के मालिक को प्यासा देखते रहे। आबे हयात यानी जिंदगी के पानी का मालिक, आबे हयात के मालिक को प्यासा देखते रहे, बांटा किसी ने ना दर्द प्यासा। सारे, कोई नेजा मार रहा है, कोई ठट्ठे उड़ा रहा है, कोई दाढ़ी को नोच रहा है, कोई मुंह पे थूक रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है बाप इनको क्या कर दे। सो मैं जैसी को बता दूंगा आए, और वो 5वां कलमा जो है आपके दरमियान पढ़ेगी। खुदा के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। 3 अल्फाज का मुख्तसर सा जुमला जो कोई शख्स भी अदा कर सकता है और कह सकता है कि मैं प्यासा हूँ, और वो भी उस वक्त जब वो मुसलसल कई घंटों से बहुत ज़्यादा तकलीफ और अजियत में मुब्तला हो।
पूरा बदन खींचा हुआ हो और हड्डियां उखड़ चुकी हों, उस वक्त प्यास का एहसास और इजहार करना फितरी बात है। लेकिन ये आम और सादा सा अल्फाज जब मसीह यीशु की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ तो आम ना रहा, बल्कि बहुत ही खास बन गया कि इंसान इनकी गहराई में गुफ्ताज़न होकर अपनी और दूसरों की प्यास बुझाता है। मैं सोच ही रहा था कि पहले कलमात में आप किसी ना किसी से मुखातिब हैं, कि ए बाप, ए औरत, तू आज ही मेरे साथ, ए मेरे खुदा। लेकिन इस कलमे में मालूम नहीं होता कि आप किससे मुखातिब हैं। हम जब प्यासे हों तो प्यास बुझाने के लिए जिस किसी से पानी मांगते हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं या उसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा मालूम नहीं होता। जहन में रहे कि पानी जिंदगी है और कलवरी पहाड़ पर मौत जिंदगी को मौत के घाट उतारने के लिए बढ़ाना रक्स पेश कर रही थी, जबकि मुजरिम को पानी पिलाना जिंदगी या सुकून देने के मुतरादिफ था, जो कि हमाकत का काम था। और जलादों की कोशिश ये होती थी कि मसलूब शख्स जल्द से जल्द मर जाए, और टांगे तोड़ने का मकसद भी यही होता था कि जान जल्द से जल्द निकल जाए और वो अपने काम से फारिग हों। ना ही आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल से या मुकद्दसा मरियम से पानी मांग सकते थे, क्योंकि उनकी तो इस सारे मंजर से अपनी सांसें उखड़ी हुई थी और बेबसी के आलम में अपने जिस्म का पानी भी आंसू में बहा चुके थे और खुश कल्ब से सब कुछ देख रहे थे। तो फिर क्यों आपने कहा कि मैं प्यासा हूँ, जबकि ज़बूर 1 में लिखा है कि वो यानी मसीह उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर पलता है और जिसका पत्ता मुरझाता नहीं। दरअसल ये कलमा इससे पहले चौथे कलमे के साथ जुड़ा है कि आप 22 ज़बूर की तलावत कर रही हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, और मुसन्निफ ने इन अल्फाज का जिक्र भी इंजील मुक़द्दस में कर दिया, क्योंकि इसी 22 ज़बूर की 15वीं आयत यानी बिल्कुल दरमियान में लिखा है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानित हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, जिसका मतलब है कि मैं प्यासा हूँ। अब इससे जाहिर है कि आप 22 ज़बूर की तलावत कर रहे थे, और अगर इस कलमे के साको सबक को भी देखा जाए तो इससे पहले अल्फाज ये हैं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई तो आपने कहा कि मैं प्यासा हूँ, बल्कि इसका ताल्लुक नबिश्ता पूरा होने से है, जिसका जिक्र अगली आयत में है कि वहाँ सिरके से भिगोया हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को सोफे की शॉप पर रखकर उसे पिलाया। बस जब यीशु ने सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। जाहिर है कि जिस घड़ी से आपको गिरफ्तार किया गया, सुकून की घड़ी नसीब ना हुई। कभी यहाँ तो कभी वहाँ पैदल आना जाना हो रहा था। कोड़ों की मार, ज़हनी अजियत से बुरा हाल था। भारी सलीब और पहाड़ी रास्ता है। सलीब पर कीलों से झड़ा बदन और खींचे हुए मसल और हड्डियाँ पानी का मुतालबा तो करती हैं, मगर किससे? माँ अगर उस वक्त वहाँ मौजूद थी तो ये अल्फाज सुनकर उस पर क्या गुजर रही होगी जब आपने कहा कि मैं प्यासा हूँ। मगर वो क्या करती? और वैसे भी वो बहुत परेशान थी कि उसके बेटे ने उससे ये कह दिया है कि अब से मैं नहीं बल्कि ये तेरा बेटा है। और एक माँ के लिए जिसने जन्म दिया हो, ये बात बहुत तकलीफ दे होती है, लेकिन जालिम मौत रिश्तों को खत्म कर देती है। आपको किस चीज की प्यास थी? ये आपकी अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज के तनाज़ुन में ही दिखते हैं, और वो अल्फाज हैं जब आपने अपनी खिदमत के आगाज में अपनी बादशाही का आगाज किया कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि आसूदा होंगे। अब रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी महज वो अच्छा काम नहीं जो हम इंसान होते हुए करते हैं, बल्कि रास्तबाजी खुदा का नाम है, उसकी ज़ात है, यानी खुदा जो कुछ भी है वो सारे का सारा रास्तबाजी है, और उसकी भूख और प्यास रखने वाला मुबारक है, क्योंकि फिर उससे जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और सलीब पर यही मंजर था। इस प्यासे इंसान की प्यास अपना ही पाक और पवित्र लहू था, जिसके घूंट वो पी रहा था, क्योंकि ये प्यास पानी से बुझने वाली नहीं थी, चाहे समंदर पी जाता है, क्योंकि ये इसके इश्क की इंतहा थी कि महबूबा के हाथों ही महबूब जाम शहादत नोश फरमा रहा था। यूहन्ना रसूल से बपतिस्मा लेते वक्त आपने फरमाया कि अब होने ही दे,
क्योंकि मुझे इसी तरह से सारी रास्तेबाजी को पूरा करना है। पानी में खड़े जिंदगी के पानी ने इसी रोज ये बेड़ा उठा लिया कि हाँ, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। और आसमान से ये आवाज़ आती है कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। दरअसल हमारे और मसीह खुदावंद के बपतिस्मे में एक खास फर्क पाया जाता है। हम जिंदगी हासिल करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसने जिंदगी देने के लिए बपतिस्मा लिया, यानी अपनी जिंदगी को मौत के हवाला कर दिया। मौत से बचने के लिए मिस्र का सफर करने वाला खुद पूरे होशो हवास में मौत को कबूल करता है। और वो दिन थे कि मौत आप पर वाजिब हो गई और आपका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने ऐलान जंग कर दिया था और बियाबान यानी अब्लीस के घर में घुसकर उसका मुकाबला किया और फिर अमली तौर पर मौत को गले लगा लिया। सिर्फ इस वक्त के रोमी सिपाही और दीगर लोग जालिम ना थे, बल्कि आज भी ऐसा ही है, क्योंकि वो आज भी प्यासा ही है उसके, इसलिए कि वो मोहब्बत है। और मोहब्बत ऐसा रोग है, चाहे कितना भी, और मोहब्बत ऐसा रोग है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। वो आज भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मुझे अपनी जिंदगी दे दो। वो आज भी रूह की तलाश में जो सच्चाई से उसकी परस्तिश कर सकें और दूसरों को भी उसकी तरफ लाने का सबब बने। क्या आप उसकी प्यास बुझाने या उसमें कमी करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर आप में और मसलूब करने वाले उन सिपाहियों में कोई फर्क नहीं जो उसे सिरका पिलाते हैं। फिर अदालत होगी जिसमें पूछा जाएगा कि मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी ना पिलाया। आज भी जब कोई रूह उसे कबूल करती है और उसके पास आती है, तो फरिश्ते इसीलिए खुशी मनाते हैं कि उसके आका को पानी का घूंट मिला हो। आप सोचते होंगे कि काश उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद होती या होता, तो मैं उसे जरूर पानी पिलाता या पिलाती। मगर याद रहे कि वो ये जात है जिसके यहाँ कभी देर नहीं होती। आज भी आप आज भी अपने अरमान को पूरा कर सकते हैं और उसकी प्यास बुझाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि इसका अमली नमूना कर सकते हैं, क्योंकि वो आज भी मौजूद है और प्यासा है। इसलिए वो दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, क्योंकि उसकी भूख और प्यास ये थी कि अपने भेजने वाले के मर्जी को पूरा कर ले, जिसका इजहार तलावत पाक कलाम को दोहरा कर वो सलीब पर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आमीन। आज मसीह खुदावंद की प्यास मेरी और आपकी जिंदगी है कि हम गुनाहगार जिंदगी छोड़कर उसके पास आ जाएं, गुनाहों को तर्क करके उसके पास आ जाएं और अपना आप उसके सपुर्द करें। एक इस्तिहाई अंतरा हम गाएंगे और उसके बाद छठा कलमा मेरी मिसेज हैं वो पेश करेंगी। ले लाला डांगा पलिया कुर्बान हो चलिया, ले लाला डांगा पलिया कुर्बान हो चलिया, जांदा दुखड़ा ना जलिया, हाय हाय जवानी कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, दे तौफीक असानू ओ बड़ा हौसला करिए, दे तौफीक जाना रुड़ने आतारी पढ़ के लाए कनारे, जाना रुड़ने आतारी पढ़ के लाए कनारे, कलवरी के सहारे पापी बच देने सारे।
کریں گے. دیہا آپ دعا کرو کلمہ سنائیں. आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हाँ जी, अभी मैं छठा कलमा सुनाने जा रही हूँ जो कि है फतहमंदी और कामलियत का कलमा। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 30वीं आयत में लिखा है, तमाम हुआ यानी पूरा हुआ। ये अल्फाज फतहमंदी और कामलियत की ललकार और ज़बरदस्त नारा जो मर्द गमनाक की ज़ुबान मुबारक से मुसलसल 5 कलमात पूरे होने के बाद निकला, यानी तमाम हुआ, मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी कि पाया तकमील तक पहुंच गया। जो 5 कलमे आप सुन चुके हैं वो ये हैं, आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो ये था, जो उसने डाकू के साथ बातचीत की, बात की कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, हालेलुया। और तीसरा कलमा जो यीशु मसीह ने अपनी माँ के बारे में बोला, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द ने यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा जो यीशु मसीह के जुबान मुबारक से निकला वो ये था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा एक्टिव हो जाए, मैंने आपसे भी बात करनी है, ठीक है। पांचवा कलमा जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो ये था कि मैं अभी जैसिका सुना के गई है आपके ज़हन में, पांचवा कलमा क्या था, मैं प्यासा हूँ। और छठा कलमा जो अभी मैं सुनाने जा रही हूँ, यूहन्ना की अंजील 19वां बाब 30वीं आयत में, तमाम हुआ। ये कलमा शरीयत के तमाम तकाज़ों की तकमील का कलमा है। पुराने अहदनामा में हर पेशन गोई जो यीशु मसीह के बारे में की गई थी वो पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, आखिरी जंग लड़ी गई और जीती जा चुकी है। किसने लड़ी है? यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर आखिरी जंग जो लड़ी है वो यीशु मसीह ने जीत भी ली है। कैसे जीत ली है? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। नंबर 2, गुनाह का इख्तियार खत्म हुआ। क्या हुआ? गुनाह का इख्तियार खत्म हुआ। नंबर 4, शैतानी कुव्वतों और ताकतों का क्या हो गया? खात्मा हो गया, रोन दी गई। यीशु मसीह ने क्या कर दिया था कि उसको रोन दिया, यानी कि अपने कदमों के नीचे मौत की कुंजी को वो आलमे रुआ में जाके लेके आ गया। मौत की कुंजी कहाँ थी? पहले जब इंसान मरता था तो सारी जितनी भी रूहें हैं वो आलमे रुआ यानी कि रूहों की दुनिया में जाती थी, तो वहां से कोई वापस नहीं आता था। लेकिन वाहिद इंसान जो यीशु मसीह है वो जब मरे तो आलमे रुआ से मौत की कुंजियों को लेके फतह का क्या बन के, लुत्मा बन के हमारे सामने आ गए, हालेलुया। और 5वें नंबर पे आसमानी निजात का दरवाजा खोल दिया। आसमानी निजात का कैसे दरवाजा खोल दिया? जब ये अदन में गुनाह हुआ, गुनाह क्या हुआ था? आदम और हवा ने फल खाया, नाफरमानी की थी, गुनाह हुआ, नाफरमानी की, तो क्या हुआ था? जुदाई पैदा हुई थी खुदा और इंसान के बीच में। तो उस जुदाई को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आए और आसमानी निजात का दरवाजा खुल गया, हालेलुया। ज़िक्रिया नबी ने भी एक पेशन गोई की थी कि नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा, और वो कौन सा था? यीशु मसीह। किताब मुकद्दस के मुताबिक गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है, और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। यानी कि यीशु मसीह की मौत के बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते, ठीक है। बगैर खून बहाए माफी नहीं है। यीशु मसीह ने खून बहाकर माफी
मुझे और आपको और आपके गुनाहों को और मेरे गुनाहों को धो दिया है। उसने अपना त्याग देकर, खून देकर और फरमाया कि क्या हुआ? आप बोलेंगे क्या हुआ? तमाम हुआ। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। हम कैसे सलीब की बात करें, ये बात उठाना मुश्किल है। हम प्यार के किस्से क्यों छेड़े, ये प्यार निभाना मुश्किल है। क्या हासिल इशाए रुबानी से, बपतिस्मे से क्या फायदा है? यीशु में मर कर एक नया इंसान बनाना मुश्किल है। इसी तरह से कोई भी इंसान जब क्या होता है, मरता है, यानी कि उससे पहले ये वो जितने भी दुनिया में काम है वो ये नहीं कहता कि तमाम हुआ, जो मैंने काम मेरे जिम्मे लगाए गए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ एक इंसान है जो कि है यूसुफ सी। आप कलाम ध्यान से सुने, ये जो लड़कियां बातें कर रही हैं, लेकिन वह इंसान जो यूसुफ सी है, जब उन्होंने अपने जो खुदा ने उनके जिम्मे काम लगाया था उनको तमाम किया, कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, तो क्या हुआ था? तो फिर वो तैयार थे बिल्कुल कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। मौत और इंतकाल में फर्क होता है। यीशु मसीह की मौत नहीं हुई थी बल्कि इंतकाल हुआ था। हर इंसान जब मरता है तो दुनिया में क्या हो जाता है, उसका जिस्म दुनिया में ही रह जाता है, रूह चले जाती है। लेकिन वह हमारे खुदा यीशु मसीह है जिनका क्या हुआ था, जब वो मर गए वो जिस्म के साथ आसमान पर उठाए गए। हालेलुया। और उनका हम याद कर सकते हैं कि उनका मुंतकिल हुआ, यानी कि इंतकाल हुआ था यीशु मसीह का, यानी कि आसमान पे तशरीफ ले गए थे। हालेलुया। मसीह की कुदरत अपनी हस्ती को मिटाने से हमारी जिंदगी में तमाम हुई और वो बात पूरी हुई जो यीशु मसीह करने के लिए इस दुनिया में आए थे। शरीयत का तकाजा पूरा हुआ। मत्ती की इंजील 5वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, ये ना समझो कि तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह तजस्सुमुल्लाह का मकसद पूरा करने आए, कफारा की कीमत अदा करने आए, बैल बच्चों की खून से नहीं बल्कि अपने लहू से। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। एक दुआ मांगे। एल्डर रशीद साहब दुआ करेंगे। खुदा हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए उन कलमात को जो आज हम दोहरा रहे हैं, तेरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो खुदा बाप इन कलमात के वसीला से तू खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना और अपने कलाम के साथ चलने का भारी फजल अता करना। यीशु मसीह के कदर और जलाली नाम से मांगते हैं। सर उठाएं। थोड़ी देर के लिए तो जो चाहिए होगी आपके सामने जो है ये अभी जो हमारे एड साहब ने, मेरी मिसिस ने और दीगर बच्चों ने खुदा के कलाम की बातें पेश की। दर हकीकत हमारा मकसद इनको काम करो सर। दर हकीकत हमारा जो बुनियादी मकसद है वो हमेशा यही है कि हम अपने बेटे और बेटियों को इनकरेज करें और इसी तरीके से सही, लेकिन कम से कम वो मसीह की मौत का जो मुकाशफा है उसको समझने की कोशिश करें और मसीह का मुर्दों में से जी उठना, सलीबी मौत, दुख, तकलीफ, हर चीज इसके अंदर हमारे लिए तशरीहाती तौर पे कुछ ना कुछ है जो बेनहा है। 7वां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत है। यीशु मसीह के एक एक बात हमारे लिए इंतहाई कीमती और जो कि वो माइक दो
میں بات کر رہا تھا کہ مسیح خداوند کی منہ سے نکلی ہر بات ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے. میں آپ کے سامنے کچھ اشعار ہیں، ان کی کچھ لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے، جو چہرہ چمکیلا تھا دکھ سے کتنا پیلا تھا، کپڑے ریشہ ریشہ تھے سر پہ تاج نوکیلا تھا. آپ ذرا ظلم کی انتہا دیکھیں. وہ ایک گیت ہے نا، بندے ایک نے گایا، ہولی ہولی کھیل لاویں، ہے نا، سہج سہج نال مار ہتھوڑا وے تو کیوں اینی ات پت میرے دیاں نازک تلیاں تے تو جانا ہے ظلم تے ظلم کمائی، ایک کل میرے سینے وچ جاڑ دیو. ماں کی کہندی ہے، ایک کل میرے سینے وچ جاڑ دیو مینوں آ جائے پت دی. بھلے یہ مکاشفہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کے وعدے کو پورا کرنے آئے، لیکن جس ماں سے اس نے جنم لیا، جس ماں نے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، زمانے کی باتیں سنی، کبھی مصر کو بھاگ گئے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور جب ولادت کا موقع آیا تو کسی عالیشان محل میں نہیں بلکہ ایک سرائے میں، وہاں جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے، ایسی جگہ پر جائے پیدائش مسیح کی بنی. بتانا یہ ہے کہ مسیح خداوند ہمارے لیے جب دکھ اٹھا رہے ہیں تو ظلم کرنے والے جو ہیں وہ محبت سے کیل نہیں لگا رہے، ہے نا. اور پھر شاعر کہتا، خون کی بوندیں چہرے پر جسم لہو سے گیلا تھا، قطرے نسی جگہ جگہ چھٹے نسی بجے، پورے جسم سے خون نچڑ رہا تھا. کسی کا کدی سر پھٹ جائے نا تو دیکھا کتنا سر تو بلڈ نکلتا ہے. مسیح خداوند میری اور آپ کی خاطر جس سچویشن اور جس حالت میں تھے وہ سمجھنے کے تعلق سے ہے کہ میں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ مسیح خداوند میرے اور آپ کے لیے کس طرح سے صلیبی موت کو گوارا کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور اس زندگی کے پیغام میں جو سب سے اہم اور خاص بات ہے، یہ زندگی 10 20 30 40 دن کی نہیں، بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے پھر بھی کیا ہے. اب یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی، اب قیامت اور زندگی، اور پھر یہ کہنا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے پھر بھی زندہ ہے. قیامت کا مطلب لفظ قائم سے ہے، قائم کا مطلب کھڑا کرنا. اگر کوئی مر جائے، پتال میں اترے اور پھر واپس ہی نہ آئے، وہ اپنے پیروکاروں کو کیسے کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم مرو گے نہیں؟ یہ تو وہی کہے گا نا. آج کل مجھے بتائیں کون سا سیزن چل رہا ہے، ماسک آپ لوگوں نے کیوں لگائے ہیں؟ ہاں جی، بڑی توجہ نہ سنیے ذرا، میں تانوں ایک گل دسنا لا. کووڈ-19 اور حکومت نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہاں جی بتائیں. میں کہنا کہہ رہے کہ عمران خان کے خلاف گل کر دیو. حکومت نے کیا کیا ہے؟ مسیح کی قبر پہ لاک ڈاؤن بھی کر دیا، اور 50 بار پتھر بھی وہ گیا اور مسیح مردوں میں سے نہیں. قبر کے اندر رہنے والا اور سوچا کہ قبر جو ہے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، بھاری من پتھر رکھ دیا، لیکن وہ لاک ڈاؤن بھی جو ہے نا وہ مسیح کو اندر نہیں رکھ سکتا. آپ کا ایمان ہی آپ کی شفا ہے، آپ کا ایمان ہی آپ کی بحالی ہے، آپ کا ایمان ہی آپ کو آپ کی منزل مقصود، وہ جس کے بارے میں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی کا تاج اور کبھی نہ مرجانے والا صحرا ملے. دنیا میں آپ اپنے لیے بہت سی گنجائش پیدا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کو کیا یقین ہے مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ قبرستان میں جانا ہی جانا نا. ہاں، مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ جنہ لئی تو پاپ کماوے یار کسے نہ بڑھنا ہے، باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. کسی کے لیے خطا کر بیٹھنا، کسی کے لیے جرم کر بیٹھنا، کسی کے لیے حکم عدولی کر بیٹھنا. سنیں کلام کیا کہتا ہے. سانپ کی شکل میں جب ابلیس
हवा के पास आया ना, तो जो सवाल उसने हवा से किया, क्या हवा और आदम को पहले से नहीं बताया गया था? आपको पता है शैतान क्या करता है? शैतान हमारे सामने खुदा के अहकामात को तोड़ मड़ोड़ के लाता है ताकि हमें कंफ्यूज करे। इब्लीस क्या करता है? वो हमें कलाम तोड़ मड़ोड़ के हमारे सामने रखता ताकि हमें कंफ्यूज करे। अब देखें, तो दो हस्तियां हैं जिन पर आजमाइशें आई और एक कामयाब रहा और दूसरी हस्ती नाकाम रही। पहले हवा की बात कर लें। देखें, हवा को इब्लीस कहता है, क्या तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते? तो एक और काम पूरा पड़े तुमसे। हवा क्या कहती है? नहीं, हम हर दरख्त का फल खा सकते हैं, वो जो बाग के वस्त में है ना, उसका नहीं खा सकते। अब हवा को इब्लीस कहता है, अच्छा ये बात है, ये ही तो खुदा चाहता नहीं कि तुम खाओ। भाई क्यों? जिस दिन खा लिया तुम रब वर्गे हो जाओगे। की हो जाओगे? रब वर्गे हो जाओगे। अच्छा ये बात है। लिया, देखा कि फल तो बड़ा खूबसूरत है, खुशनुमा है, ना सिर्फ खुद खाया बल्कि अपने खामद को भी खाने को दिया। जब खाने को दिया तो उनकी आंखें खुल गई। क्या उससे पहले वो अंधे थे? बताएं, क्या उससे पहले वो अंधे थे? असल में जो मैंने जी अब यहाँ मामला क्या है? आपका कनेक्शन। अच्छा गल सुना ध्यान नाल जरा। तुसी कदी कदी लोगों ने देखा, कई लोग मतलब किसी ਨੂੰ नाफ पै जाए, गर्दन का मसला होवे, कोई होर, ते वो कहंदे ने बगैर पैसों तो करते ने काम, ते जे उन्हां नूं कहो ना किन्ने पैसे लैणे ने, ते वो हमेशा कहंदे ने मैं ना मैनूं रब वालों बख्शिश है ते मैं शिफा वेचदा नहीं, मैं फ्री देना, जे मैं पैसे ले ते शिफा जाती रहनी है। खुदा जिसने आदम को बनाया, जिसने आदम की पसली से हवा को लिया, और कलाम कहता है खुदा ने आदम के मैं और आप माँ बाप से पैदा तो होते हैं, लेकिन मेरे और आपके अंदर वो वाला दम नहीं है जो खुदा ने खुद आदम के अंदर जिंदगी का दम रखा था, और आदम जी थी जान वाला। हम तो आदम की नस्ल है ना, लेकिन आदम खुदा से था। यही नस्ल रामा में ना लुका की। जिंदगी में बहुत कम मौके इंसानों के पास आते हैं कि जब वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को समझ सके, जब वो अपनी शनाख्त को समझ सके कि हम है कौन, हमारे पास है क्या। अगर हम मुकद्दसीन में से हैं, यानी खुदा पर ईमान रखने वाले ईमानदार हैं, मर भी जाए तो खुदा का मसला आपसे अलग नहीं होगा। जिंदा मिसाल है, मर्द खुदा अलीशा नबी को दफना दिया गया, बड़े सालों के बाद उसी की कब्र में एक मुर्दा दफनाने लगे, और उस मुर्दे की हड्डियों के साथ मुर्दा लगा और वो मुर्दा जिंदा हो गया, और लिखने वाले ने लिखा कि वो हड्डियां अलीशा नबी की थी, जिसके साथ मुर्दा लगा तब होते ही जिंदा हो गया। खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की हशमत आपसे अलग कभी नहीं होगी अगर आप अनॉइंटेड हैं। याद रखें, कलाम ये सिखाता है। यीशु मसीह ने लूका की इंजील में जब तमार पढ़ा, उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। जब मसा किया है ना, तो मसा याद रखें, मसीह खुदावंद इस कदर अनॉइंटेड थे कि लोग तो उनके कपड़े को छू के शिफा पा जाते। तो लंबा थोड़ा चक्कर नहीं, कपड़े को, इसका मतलब है कि आपके कपड़े, जब आप अंदर से गुनाह लुदा होंगे तो आपके कपड़े भी गुनाह लुदा है। इसके अंदर भी बदी है, गुनाह है, बदकारी है। लेकिन जब आपका मसा आपकी हुजूरी खुदा के साथ कनेक्टेड है और आपकी रूहानियत अरूज पर है, बुलंदी पर है, तो याद रखें आप सरतफा खुदा की हुजूरी में। कलाम में सिर्फ एक जगह मिलता है कि खुदा ने कहा है आदम तू कहाँ है ना, और आदम ने क्या कहा? हाँ क्या कहा आदम ने? लिखा है जूही तेरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं डर गया क्योंकि मैं क्या हूं। अच्छा जी, दो कोई देखें, हर बंदे की इंटेलिजेंस
ਕਿਸ ਹਾਦਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ इंटेलिजेंस ही उनकी होती है। तो हमारे अंदर कई दफा होता है कि हम दूसरे को भी उस लेवल पे मापने की कोशिश करते हैं। देखें, जिदों ने कहा ना मैं की हाँ, आदम ने क्या कहा, मैं डर गया क्योंकि मैं क्या था, खुदा ने कहा तू फल खा ले। एकदम से कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ और हुआ। क्यों कि हुक्म अदूली की, गुनाह किया, और गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, बरहना कर देता है, और गुनाह इंसान से उसकी बरकतें छीन लेता है, गुनाह इंसान से उसका मुस्तकबिल छीन लेता है। गुनाह इंसान से क्या छीनता है, उसका मुस्तकबिल छीन लेता है। आपको पता हालात कितने खराब हैं, हालात किस नौयत को जा रहे हैं। यही इब्लीस वही फार्मूला खाने पीने वाला लेके ना, तो बड़े 5-6 हजार साल बाद वो इब्ने खुदा के पास आ गया। किसके पास आ गया, इब्ने खुदा के पास आ गया। लिखा है 40 रोज और 40 दिन के बाद मसीह को क्या लगी, और फिर इब्लीस उसको आजमाने के लिए फिर सांप बन के आया, है ना, बाग एदन में। उसने फिर वही, जब आदम को खुदा का बेटा कहा गया, जो कि खुदा ने ही उसको बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, फिर जो खुदा में से निकला कलमा खुदा, ये उसके पास आ जाता है। और इतने हजार साल तक उसने फार्मूला छुपा के रखा था ना, उन्हें फिर वो कढ़िया कि हुण मैं यसु मसीह दे अजमाना। जब वो बचपन में बच्चों को कत्ल करवाते वक्त नहीं मसीह को मार सका, मसीह को वो जब बुलंदी से गिरा देना चाहते थे नहीं मार सका, फिर उसने सोचा कि यही आजमा के देखते हैं। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, अच्छा भी ये सीखने वाली बात है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को क्या तेरे लिए क्या बन जाए। कई बारी तानू कोई कह ही सकते हैं, कोई तानू कह दे अच्छा फर्ज करें ये नवीद बैठा, अच्छा तुझे वाकई रफीक का मुंडा होए हैं ते सानू ताला तोड़ के बता, ते तोड़ देना चाहिए ना ताला, क्यों भी सभा किथे दबा दसेगी तोड़ दे। याद रखें तकब्बर, क्रूर, घमंड, इसके अंदर मिली जुली जो है ना बदबू मैं कहूंगा इसको, वो घमंड की होती है, दूसरों को मनवाना। अच्छा ऐसे उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को क्या बन जाए। मैं देखें कितने दिन मसीह पुकारा, कलाम क्या करता है 40 डेज, यानी 40 दिन कुछ नहीं, तो भूख तो लगी। लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका कशी करने के बाद उसको क्या लगी, भूख लगी है। और उसके पास इब्लीस आके कहता है कि इन पत्थरों को कह तेरे लिए ग़िज़ा बन जाए, तेरा पेट भर जाए, तुझे कुछ खा ले। और यीशु मसीह कहते हाँ ये भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो इंसान खुदा के कलाम खुदा के मुंह से निकलती है। अच्छा आगे वो चलता गया, उसने कहा छलांग मार दे, उसने सजदे की बात की, लेकिन मसीह उसको कलाम में से ही। अब देखें ऐसा बाहर चले जाओ, अब उसको जवाब क्या मिलता है, अगर वो उसको छलांग मारने की बात करता तो मसीह कहते लिखा है तू खुदावन अपने खुदा की क्या ना कर ख्वाहिश। हमें से कितने हैं माड़ा या केले चुभ जाए तो सानू असीं कहने खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। आहड़ कई ने हैं और जुमा ते हफ्ता खराबल होए ना लॉकडाउन है, तो बीबियां लिए कितना बड़ा मसला है। कई बेचारे ऐसे जिन्होंने पैसे जुमे रात मिलने सी या जुमे उन्होंने मिलते गए, चलो बंदे की बचत ही होगी ना, मैं तो यही कहूँगा। तो क्या है वो फिर भी यही समझ दिला दसो शॉपिंग कितन करनी, पर असी करनी जरूर है। त्योहार वाले दिन सुबह सुबह जावांगे करके तो फिर चर्च आवांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पुराने सूट के नाल सानू कबूल नहीं करना, यीशु मसीह ने पुराने सूट नाल सानू गिरजे नहीं बढ़न देना है, पुराने सूट नाल साडी सुनी नहीं जानी, ऐसा नहीं है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन। मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा था कि आपसे किया भी कि मरने के बाद आप मुझे बताएं सारी जिंदगी अगर आप गुनाह में बसर करें तो मर लगे आपको है खुदा अपनी
तेरे हत्था च देना वा हैं चल जाएगी हैं दसो लोकी क्या किन्ना खुदा नूं मनण वाला सी दसो है भैन किन्नी खुदा तो डरदी सी क्यों रिचा मानो हैं किन्ना खुदा एल्डर चीज़ा भाई लादर नूं लाओ भाई लादर किन्ना खुदा तो डरदा सी मैं ते अगे कहना फरिश्ते नूं गलत फहमी लग गई है चौक की बजाय अगले च जाना वो इधरले चौक च रुक गया सुने आप अपनी जिंदगी के बारे में जैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद रहते ना अब मैंने ये करना है अब मैंने ये करना है ऐसे अपने रूहानी मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहें किसी बंदे ने लिखा है कि अपने माजी को लेकर डोंट चीट योर फ्यूचर विद योर पास्ट डोंट चीट योर फ्यूचर विद योर पास्ट आपका जो मुस्तकबिल है ना उसके साथ धोखा दे जो है ना अपने माजी को लेकर ना करें कई लोग कह रब्बा तेन पता ही असं गुनाहगार जे है वा तेरे को पहले भी गुनाह हो जाए चल एक होर हो लेते फिर कोई माफ मांगना है रब्बा तेन पता ही है एवं ना कही तो बोतलों ने डक खुल गए खुदा के खौफ से भी डरे खुदा को भी माने खुदा के पास भी आए ताकि आप याद रखें आपको ये यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे और जैसे जेड़ा बच्चा स्कूल से काम करके नहीं ना जाता तो जो टीचर काम चेक करता है तो क्लास वाले बच्चे की जी ना कोशिश ये होती पीरियड खत्म ही होते कितने घंटी वाजी जाए है ते वो घंटी वाजे तो पिछों रौला पीरियड खत्म हो गया पीरियड खत्म मास्टर कहेगा बह जा मैं कापियां चेक करके आना उन्होंने सब तो बहुत ही डंडे पीते समझ लगी आप याद रखें एक जगह लिखा है कलाम खुदा में पतरस के खत में कि अगर मूसा के दौर से कोई बंदा गुनाह करता सी ते ओनू पत्थर मार मार के संसार कर देंदे सी ते ओ बंदा या बंदी जेड़ा खुदा दे बेटे ते ईमान ले आए ते फिर गुनाह करके ओदे फजल नू पामाल करे केड़ी सजा दा मुस्तहिक ज्यादा सजा मिलेगी ना और कलाम में फिर ये भी लिखा है अगर ज्यादा फजल हुआ है ना तो सजा भी फिर ज्यादा होगी क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है आप मसीह की तरह बने कलाम में लिखा मसीह मरने के बाद कैदी रूह में चला गया उनको अंजील सुनाई और फिर कलाम कहता है जब वो आसमान पर गया तो कैदी रूहों को भी साथ ही और कई दफा कुछ कहते हैं कि ये वो कैदी रूहें थी जो तूफान नूह के वक्त पलाल में थी तो खुदा गॉड इज वॉचिंग यू खुदा आपसे प्यार करता है वो आपकी फिक्र करता है अपना आप अपना तन मन धन अपनी सोचें ख्यालात खुदा को दें खुदा आप सबको बरकत दे और अपने सर कुछ करें